Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now continue my class for 11th. Continue my chapter number 2nd, and now today this chapter is the completed, last exercise. Yesterday we discussed about the type of the functions. Now two types are more, the greatest integer functions and smallest integer functions. Now what is the greatest integer function? Also its names, other name is the floor functions. Now suppose one function is given from R to R, where R is the real number. And this function given in this bracket, greatest bracket. So is equal to x, where x is the always integer. That means in this bracket x is the any real number, but answer also always write in the form of integers, means 0, 1, 2, 3, or maybe 0, minus 1, minus 2, minus 3. Not write in decimal form, not write in fractional form. But in bracket, maybe x is decimal number or maybe fractional number. But answer is always become in integers form. So it is called integers functions. Greatest integer function, for example, they are given in bracket 2.75. So write the integers just before it. 2.75, write the integer before it. Now before it the integer is the 2. So answer is the 2. And suppose sometimes they are integers already given number in the real number is the integer. So write the answer is same. 3 is 3. Suppose integer is 4, 4 is 4, 5 is 5, 6 is 6. Is clear? Now one more example, 0.75. So 0.74 इससे पहले इंटीजर्स कौन सा आ रहा है? 0. So you write 0. 0.92. So write the 0. 1.42. Write the answer is 1. Minus 7.45. Minus 7.45 से पहले इंटीजर्स कौन सा है? आपको इधर वाला इंटीजर लिखना है. -8, -7, -8. तो -7.45 से पहले -8. So write the answer is -8. Same for other real numbers. And same smallest integers function, write in the form of ceiling function. Upper, this time write the highest integer. Now same from R to R such that write in the same in bracket, but answer is become in form of integers. Now same for every x belongs to R. Suppose 2.75, we take the same examples. 2.75 equal to, now this time write this integer. After 2.75 the integers is 3, so we write the answer is 3. And same integer is 3, as it is 3, 4 is 4, 5 is 5. No problem. But 0.75, write the right side integer. So answer is 1. Because after 0.74 is integer is 1. Minus 7.45. Minus 7.45, this integer. So his answer is -7. So answer is -7. Same for other integer. So ये हो गया आपका इन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन. तो ये आज आपका कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ द इंटीजर्स. इसके बाद में अपन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस. डोमेन एंड रेंज, कोई भी फंक्शन किसी भी फॉर्म में गिवन हो, वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज कॉल्ड द डोमेन. जो वैल्यू एक्स उस फंक्शंस के लिए अप्लाई होती है, सेटिस्फाइज होती हैं, उस सभी वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं. और उसी फंक्शंस के लिए जो वैल्यू y के लिए सेटिस्फाइज होती है, अप्लाई होती हैं, उनको हम रेंज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर बुक, इन दिस योर बुक लास्ट एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन. द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन fx is equal to minus mod x. And its second part is fx is equal to square root of 9 minus x square. It is the second part and it is the first part. There are two questions are given.
They are very important examples, questions. First question, what is the domain? Domain means all the values for x which apply for this one. Where fx means y is equal to minus mod of x. You know mod, अगर mod के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो बाहर वो वापस पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ mod के बाहर नेगेटिव है. लेकिन x वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? x तो आप कोई भी वैल्यू अप्लाई ले सकते हैं, एनी रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियल फंक्शंस हैं. तो यू टेक द x always belongs to R. So what is the domain? Domain is equal to x belongs to R. Means all real number is the domain. But what is the range? अगर अपन range की बात करते हैं यहाँ पर, so what is the range? Range means value of y according to x. अब x आप पॉजिटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और नेगेटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाहर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो दैट मीन y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव आ नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे -3 भी लिखा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ बाहर माइनस है, लेकिन ये बाहर माइनस आके वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मीनिंग ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो माइनस रहेगा, तो इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में नहीं आ रहा है, ओनली नेगेटिव. तो जीरो आ सकता है, जीरो से सभी नेगेटिव वैल्यू, तो दैट मीन्स व्हाट इज द रेंज? रेंज इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 0 टू, दैट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे -∞ to 0, this one, it is the range, क्योंकि सभी नेगेटिव आंसर है, and before 0 all the values are range, negative, so it is the range for this question. तो ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया डोमेन एंड रेंज. बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड. fx को हम पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. पहले हम डोमेन की बात करते हैं x के लिए, तो आप देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है. स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो नंबर अप्लाई नहीं होगा, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट ए रियल नंबर. और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रियल फंक्शंस की, दैट मीन्स स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. इसका मीनिंग क्या हुआ? 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा. तो अब यहाँ x की कौन सी वैल्यू इस फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए ये फंक्शन अप्लाई हो सकता है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो सकता है, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट हो सकता है. तो बात करते हैं एक्स स्क्वायर को मैं उधर शिफ्ट करता हूं, तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9. अब यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3. लेकिन आप बात करते हैं स्क्वायर रूट में, जब स्क्वायर की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए साइन वही रहेगा. लेकिन अब अगर अपन नेगेटिव साइन लेते हैं तो आप देखेंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3. माइनस के अंदर जब भी आप ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन का जो साइन होते हैं, अगर माइनस का साइन लेते हैं तो वो ग्रेटर टू नेगेटिव ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू मे बी लेस देन और इक्वल टू 3 और मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. तो अपन क्या लिखेंगे? x, यहाँ पे आप लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3. इट इज द कंडीशन फॉर x की ये कंडीशन है. आप इसको सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू such that x greater than equal to -3 or less than or equal to 3. It is the domain. ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया डोमेन, बिकॉज वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज फॉर x, इन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ये अपन के लिए डोमेन हो गया, क्योंकि ये x की वैल्यू है. अगर बात करते हैं अपन रेंज की, तो रेंज के लिए मैंने आपको कहा था y, ये है y. आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा आंसर. अगर ये पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं आप, अगर आप और x की अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, x की आप कंडीशन ये लिख रहे हैं, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव क्यों रहेगा? स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव नंबर ही नहीं है तो नेगेटिव आंसर ही नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. अब पॉजिटिव कौन कौन सी वैल्यूज लेगा? x की जो वैल्यू पॉजिटिव है कंडीशंस में है, वो पॉजिटिव वैल्यूज आप अप्लाई कर सकते हैं. तो पॉजिटिव आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? -3 नो, -3
2 नो, -1 नो, 0 आप ले सकते हैं, 0 to 3 is are all values are positive. So that means length is equal to, स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, इसको आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा. So that means start from 0 and 2, 3 means y is greater than or equal to 0 but less than or equal to 3. चाहे तो आप इसको ऐसे लिखें, चाहे तो आप इसको ऐसे लिखें. अगर आप एक सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी बताता हूँ. देखो ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और सेट की फॉर्म में लिखेंगे y such that y greater than equal to 0 और less than equal to 3. मैंने तीनों फॉर्म में लिखकर बता दिया ताकि कंफ्यूज ना हो. तीनों में से तीनों नहीं लिखने एक साथ, आपको केवल एक ही लिखना है. ये ज़्यादा बेटर रहेगा. 0 to 3 means because y is always we get the positive for all the values for x like this one. आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं. अगर मैं -3 भी लेता हूँ यहाँ पे सपोज, but square of -3 is equal to positive. 3 into 3 9. So 9 minus 9 0 and square root of 9 is again 0. तो y की वैल्यू 0 अपन अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया. 0 से 9 3 ऑल पॉजिटिव वैल्यू. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए. अब अपन लास्ट इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द ओनली रेंज, ताकि डोमेन और रेंज आपके लिए क्लियर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रेंज फॉर द क्वेश्चन y equal to 2 minus 3x. अब यहां आपको रेंज फाइंड करना है. अब कंडीशन क्या है, x तो बिलोंग कर रहा है R, बट गिवन है x is greater than 0. x greater than 0 means y is greater than 0. यहां पे x greater than 0 दे रहा है. तो अगर मैं x greater than 0 लिखता हूं तो x की वैल्यू जब भी आप 0 से greater than लिखेंगे तो फाइनली होगा क्या, 2 minus 3x is greater than 0 means 3x is x greater than 0 के लिए y की वैल्यू कौन सी अप्लाई हो रही है, वो y की जो वैल्यूज होगी वो आप फाइंड आउट करेंगे रेंज. तो फाइनली अपन अगर बात करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो सपोज 0 भी लेते हैं तो ये 2 आएगा. 0 आपको लेना नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ओनली ग्रेटर देन है. तो 0 से ग्रेटर देन अगर आप लेते हैं 1 तो 2 minus 3 जो है वो आपके लिए माइनस में वैल्यू आ जाएगी. और ये वैल्यू रियल नंबर में x 0 से ग्रेटर देन बनता है तो यहाँ पर y हमेशा रेंज इज इक्वल टू, ये अपन लिखेंगे 2 to infinity. क्योंकि अगर मैं इसको 0 के इक्वल करना नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट ये यूज कर रहा हूँ ताकि ये 2 से इन्फिनिटी हो जाए. ओके, नाउ सेकंड पार्ट इसका मैं ले रहा हूँ ताकि रेंज का पार्ट आपका क्लियर हो जाए. रेंज इक्वल टू y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2. अब मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है और यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी x इज द एनी रियल नंबर मीन्स x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. अगर x रियल नंबर है और y की वैल्यू ये है तो यहाँ पर y फाइंड करने के लिए पहले आप x को कैलकुलेट कर लीजिए कि x किस फॉर्म में जा रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 2. क्या मैंने मिला आपको, ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए. दैट मीन्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसके लिए मैं लिखूंगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 to infinity. ये आपको मिल गया रेंज ऑफ फॉर सेकंड क्वेश्चन.
फर्स्ट के लिए अपन ने फाइंड आउट किया था x के लिए सॉरी, इसको अगर अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3x इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट किया और ये आ गया आपका 2 माइनस वाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3, बट x हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो इसको ग्रेटर देन 0 करोगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, मीन्स y इज लेस देन 2। x लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, तो ये थोड़ा सा एक बार वापस से मैं कर रहा हूँ, y लेस देन 2, दैट मीन्स इन्फिनिटी टू 2, ये आपका रेंज बनेगा 2 टू इन्फिनिटी टू 2। इक्वल टू इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर x भी ग्रेटर देन 0 है, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ लिया है। आपको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको गिवन है y इज इक्वल टू x और वेन x इज बिलोंग्स टू r, x और y दोनों ही इक्वल है और x बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे r को, रियल नंबर को, तो दैट मीन्स रेंज इज आल्सो ऑल रियल नंबर्स। ये क्लियर हो गया। फर्स्ट जो पार्ट था जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक बार मैं फर्स्ट पार्ट इसका जो है एक बार मैं वापस डिस्कस करूं ताकि आपको वापस पूछने की मुझे आपको जरूरत ना पड़े। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये मेथड है सिंपल, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, देन x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3, ये x की वैल्यू को कैलकुलेट किया आपने। अब आपको y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है x की कंडीशन की फॉर्म में, जिससे कि आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज x, x आपको गिवन है ग्रेटर देन जीरो, एंड व्हाट इज x, x इज 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0। इसको आप क्या लिखेंगे, 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, 3 को आप क्रॉस में मल्टीप्लाई किया वापस 0 हो गया, तो फाइनली y इज लेस देन 2। तो y की क्या कंडीशन बन गई, लेस देन 2, दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू, लेस देन 2 मीन्स माइनस इंफिनिटी टू 2, दिस इज द आंसर। 2 से लेस देन जो नंबर हैं सारे, उसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो ये सारे नंबर जो बनेंगे वो आपके लिए रेंज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया आपका लास्ट एक्सरसाइज, डोमेन एंड रेंज और टाइप्स ऑफ द फंक्शन। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।